Okay students, in the last lecture we discussed the different terminologies for cam and follower, right now. As we know that cam is nothing but a device which converts its rotary motion into reciprocating motion, right? Suppose that we have a follower, a knife edge follower, and accordingly say we have a cam somewhat like this, having its axis at this point, right? So this is the axis of the cam, and camshaft is, say this is your camshaft, right? Now we know that the rotary motion of the cam will be converted to a reciprocating motion of the follower. When the cam, say for example, if it rotates anti-clockwise, the follower will start moving upwards, and about somewhere at this point, when the cam, this part is in contact, it will move downwards. That means a rotary motion of the cam will be converted into reciprocating motion of the follower, right? Now we also know that when the follower move upwards, during that part of the rotation of the cam, the angle turned during the upward motion of the follower, follower, the cam is rotating through that angle of displacement of the cam during which the follower moves upwards is termed as outstroke, right? कैम जितना एंगल घूमता है, जितने एंगल में फॉलोअर ऊपर की तरफ जाएगा, उस एंगल को कहेंगे हम आउटस्ट्रोक, राइट? आउटस्ट्रोक, और डिनोट किससे करेंगे? थीटा जीरो, राइट ना? मतलब कि अगर हमें कह दिया कि कैम का 60 डिग्री इज द आउटस्ट्रोक, ड्यूरिंग 60 डिग्री इज योर आउटस्ट्रोक, मतलब कि कैम 60 डिग्री घूमता है, उतने टाइम में फॉलोअर ऊपर की तरफ जाएगा, राइट? एंड the angular displacement of the cam during which the follower moves downwards is termed as return stroke. कैम का उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसमें फॉलोअर नीचे की तरफ आएगा, उसे कहेंगे हम रिटर्न स्ट्रोक. And the angular displacement of the cam during which the follower is in rest position is termed as dwell, राइट? मतलब कि कैम का जो एक सर्कुलर रोटेशन है, पूरा एक साइकिल, दैट इज 360 डिग्री रोटेशन ऑफ द कैम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज आउटस्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक एंड ड्वेल. देयर मे बी केस दैट आफ्टर मूविंग upwards, that is after carrying out the outstroke, the follower may rest at that position. So one dwell position or dwell motion will be between outstroke and return stroke, right? So ये बात तो समझ गई कि outstroke क्या है, dwell क्या है और return stroke क्या है, right? Now talking about the follower, हमें मालूम है कि जो follower है, it is moving up and down, that is it is reciprocating, and it has, according to the geometry of the cam or the profile of the cam, the follower can carry out different types of motions. So we will have a subheading, say types of motions of the follower. The follower may carry out a uniform velocity motion. The follower may move up with uniform velocity, it may move down with uniform velocity. So the first type of motion which the follower may have is your uniform velocity. Second type of motion which it can have is simple harmonic motion, right? So first one is uniform velocity, second motion it may have is simple harmonic motion, the third motion it can have is uniform acceleration and retardation. And the last motion it can have is your cycloidal motion.
Okay, so during the conversion of rotary motion into reciprocating motion, the reciprocating part, that is the follower, can have either uniform velocity motion, or it can have simple harmonic motion, or it can have uniform acceleration and retardation motion, or it can have a cycloidal motion, right? So using all these four conditions or four types of motions, we have to draw a displacement diagram, right? So here we introduce a new terminology, that is displacement diagram. Okay, so displacement diagram is a diagram and it tells us about something of the displacement. Now for a cam and follower system, the displacement may be angular displacement of the cam or the linear displacement of the follower. So in a displacement diagram, along the abscissa we plot the displacement of the follower or angular position of cam. That is, angular rotation of the cam is plotted on the abscissa, that is your x-axis, and on the ordinate, that is y-axis, we plot the displacement of follower or say stroke of the follower, right? Say S, that is stroke of the follower, is plotted on the y-axis, right? So angular position of the cam on x-axis, on y-axis we plot the linear position of the follower, right? Now displacement diagram, how we are defining the displacement diagram? A displacement diagram is a diagram which tells us about the displacement of the follower on the angular displacement of the cam. A diagram which tells us about exact position of the follower during angular displacement of the cam or during the rotation of the cam. So this diagram which tells us about the angular position of the cam and the linear position of the follower will be termed as displacement diagram. Now this displacement diagram varies अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ मोशन. डिस्प्लेसमेंट डायग्राम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए अलग होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए अलग होगा, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन के लिए अलग होगा, और साइक्लोइडल मोशन के लिए अलग होगा. चारों टाइप्स ऑफ मोशन के लिए जो भी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम होगा वो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हर एक कंडीशन में अलग होगी, राइट. तो हमने अभी तक इतना समझ लिया है कि हमारे पास फॉलोअर के 4 टाइप्स ऑफ मोशन है और चारों टाइप्स ऑफ मोशन के लिए हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे. और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हर एक टाइप के मोशन के लिए ड्रॉ करना आ गया तो drawing the profiles of the cam with the help of the displacement diagram is very simple thing, right. So let us move forward and see the displacement diagram for each types of motion, right. हर एक टाइप के मोशन को एक एक करके हम उनके डिस्प्लेसमेंट डायग्राम क्या होते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे और कैसे हम ड्रॉ करेंगे, राइट. ओके, सो फर्स्ट मोशन ले लेंगे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन. ओके, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन हमें ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट. हमने कहा कि एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कैम, वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोअर, राइट. अब कैम का एक रोटेशन जो होगा वो 360 डिग्री का होगा, राइट ना. कैम का जो टोटल एक रोटेशन होगा वो टोटल 360 डिग्री होगा और एक्स एक्सिस के ऊपर हमें इस 360 डिग्री को प्लॉट करना है. मतलब कि क्या मैं कह दूं कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक स्पेसिफिक स्केल कंसीडर करूं मैं, से स्केल रिप्रेजेंटिंग 20 डिग्री इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, राइट ना. 20 डिग्री होगा वो 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा. अगर ऐसा कुछ स्केल में सिलेक्ट करता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि लेंथ ऑफ
एक्स एक्सिस विच इज रिप्रेजेंटिंग द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कैम शुड बी इक्वल टू, ये जो लेंथ होगा वो मैं 18 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगा, राइट ना। मतलब कि यहां से तो एंड पॉइंट तक कितना ड्रॉ करूंगा मैं, 18 सेंटीमीटर। अगर मैंने ये स्केल कन्वर्ट किया 20 डिग्री इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, आप आपके हिसाब से जैसा स्पेस रहेगा उस हिसाब से कितना भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट ना। से 10 डिग्री इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो अगर 10 डिग्री इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर कंसिडर किया तो ऑब्वियसली जो लेंथ होगी वो मुझे 36 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी पड़ेगी, राइट। सो एक्स एक्सिस के ऊपर मैं एक सुटेबल स्केल के मदद से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कैम प्लॉट कर लूंगा, राइट। नाउ say this is your angular displacement. Angular displacement of cam, right? Now हमने कहा जो y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉलोअर प्लॉट करेंगे, और हमें मालूम है कि जो फॉलोअर है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम ऊपर जितना जाएगा दैट इज इक्वल टू लिफ्ट और स्ट्रोक, राइट ना। जो फॉलोअर है वो अपने इनिशियल पोजीशन से कुछ डिस्टेंस ऊपर जाएगा, जितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा दैट इज इट्स लिफ्ट, और उतना ही पोर्शन यहाँ तो वहाँ थोड़ी देर रहेगा, उसके बाद फिर उसे नीचे ही आना है, राइट ना। तो अगर मैं कहूँ कि जो हमारा फॉलोअर है वो मैक्सिमम इतना ही डिस्प्लेसमेंट कैरी आउट कर सकता है, और ये जो इतना डिस्प्लेसमेंट है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू लिफ्ट और स्ट्रोक, राइट ना। तो हम सीधा सीधा जो on y axis ड्रॉ करेंगे that is linear displacement, and that linear displacement से displacement is equal to stroke s, है ना। जितना भी स्ट्रोक, अगर हमें प्रॉब्लम में दिया है से द फॉलोअर इज हैविंग अ स्ट्रोक ऑफ 40 mm, तो ये जो डिस्टेंस है वो 40 mm ड्रॉ करूंगा, या फिर अगर दिया है कि नहीं इट इज इक्वल टू 60 mm, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 60 mm ड्रॉ करूंगा, राइट। तो दो बातें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे प्लॉट कर रहे हैं हम, द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 360 डिग्री जो है 360 डिग्री का एक स्पेसिफिक स्केल लूंगा मैं, उस स्केल के हिसाब से उसे लीनियरली प्लॉट करूंगा, राइट ना। 360 डिग्री एंगुलर पोजीशन तो को मैं लीनियर पे प्लॉट कर रहा हूं, मतलब स्केल कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। सो अगर मैंने स्केल कन्वर्ट किया 20 डिग्री इज इक्वल टू इज रिप्रेजेंटिंग 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि जो टोटल लेंथ होगा वो मैं 18 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगा, राइट ना। 18 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। और जो वर्टिकल डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू स्ट्रोक, जितना भी स्ट्रोक होगा दैट इज जितना भी लिफ्ट होगा उतना, राइट। ओके, इसे हम एक क्लोज्ड फिगर, मतलब कि एक क्लोज्ड लूप कन्वर्ट कर देंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, राइट। नाउ हमें मालूम है कि जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स, है ना। हमें मालूम है कि जो हमारा टोटल 360 डिग्री रोटेशन ऑफ द कैम है उसमें आउट स्ट्रोक भी होना है, ड्वेल भी होना है, रिटर्न स्ट्रोक भी होना है और ड्वेल भी होना है। अब ये कंडीशंस जो है वो प्रॉब्लम में दी हुई रहते हैं, राइट। तो अगर मैं मान लूं कि 60 डिग्री का आउट स्ट्रोक है, आउट स्ट्रोक थीटा 0 से प्लॉट कर दूं, उसके बाद से 30 डिग्री का रिटर्न स्ट्रोक है, 30 डिग्री का ड्वेल कर देंगे, उसके बाद फिर 80 डिग्री का रिटर्न स्ट्रोक, और उसके बाद जो रिमेनिंग है 30 और 60 90 एंड 170 270 370, मतलब कि 190 डिग्री का ड्वेल है अगेन, है ना। 196 3 9 9 एंड 8 17 17 एंड 19 18 18 360, ओके, राइट। अब इन पोजीशंस को मुझे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम पर प्लॉट करना है, तो करूंगा क्या मैं, है ना। रिमेंबर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बात कर रहे हैं, जो 60 डिग्री है वो आउट स्ट्रोक है। अब 60 डिग्री अगर आउट स्ट्रोक है तो हमें मालूम है 60 डिग्री मतलब कि कितना सेंटीमीटर, हमारे स्केल के हिसाब से 3 सेंटीमीटर, तो यहां से 3 सेंटीमीटर यहां तक, क्या मैं कह सकता हूं कि दिस 3 सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट द आउट स्ट्रोक दैट इज थीटा 0, राइट। उसके बाद
30 डिग्री, राइट ना, 360 डिग्री के बाद 30 डिग्री का ड्वेल है। 30 डिग्री का ड्वेल मतलब कि 1.5 सेंटीमीटर रेस्ट पोजीशन। 1.5 सेंटीमीटर, क्या मैं कह दूं कि ये 1.5 सेंटीमीटर मतलब कि इतना पोजीशन जो है वो रेस्ट रहेगा, ड्वेल करेगा। फॉलोअर विल बी ड्वेलिंग। उसके बाद ड्वेल कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट इज योर रिटर्न स्ट्रोक। फॉलोअर इज कमिंग डाउनवर्ड्स, पहले 60 डिग्री फॉलोअर वाज मूविंग अपवर्ड्स, नेक्स्ट 30 डिग्री इट वाज इन ड्वेल पोजीशन, इट वाज रेस्टिंग एट दैट पोजीशन। 80 डिग्री तक के अगला 80 डिग्री इट इज कमिंग डाउनवर्ड्स। 80 डिग्री, अब इस 80 डिग्री को अगर मैं स्केल के हिसाब से प्लॉट करूं तो कैन आई से इट विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड दैट 4 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू योर रिटर्न स्ट्रोक। और उसके बाद का 190 डिग्री मतलब कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये रिमेनिंग पोर्शन पूरा का पूरा ड्वेल करेगा, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा टोटल 360 डिग्री अब आउटस्ट्रोक, ड्वेल, रिटर्न स्ट्रोक और ड्वेल में हमने बाइफरगेट कर लिया है, राइट। अब पहले थीटा 0 मतलब कि पहले 60 डिग्री जो है उसमें हमारा जो फॉलोअर है वो ऊपर की तरफ जाएगा, आउट स्ट्रोक है, मतलब फॉलोअर इज मूविंग अपवर्ड्स, राइट। तो पहले जब कैम 60 डिग्री घूमेगा उतने में फॉलोअर विल बी मूविंग आउटवर्ड्स, राइट ना। हमारा इनिशियल पोजीशन यही रहेगा, जब हमारा कैम पहले 60 डिग्री घूमेगा फॉलोअर ऊपर की तरफ जाएगा, अगला 30 डिग्री फॉलोअर अपनी जगह पे रहेगा, अगला 80 डिग्री फॉलोअर विल बी मूविंग डाउनवर्ड्स और उसके बाद रिमेनिंग 190 डिग्री फॉलोअर अपनी जगह पे ही रहेगा, राइट। नाउ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल बी ड्रॉन लाइकवाइज। प्रोसीजर ध्यान में रखिए, राइट। हमने ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को बाइफरगेट कर लिया। वाई एक्सिस की ये जो टोटल लेंथ है, हमारा जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ कितना रखा हमने, इक्वल टू स्ट्रोक, राइट। नाउ जो हमारा आउट स्ट्रोक है, से योर आउट स्ट्रोक, ये पोजीशन आउट स्ट्रोक, रेक्टेंगल को आउट स्ट्रोक, ड्वेल और रिटर्न स्ट्रोक और ड्वेल, मतलब कि हमारा आउट स्ट्रोक, ड्वेल, रिटर्न स्ट्रोक, ड्वेल, हमारे पूरे रेक्टेंगल को हमने 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ आउट स्ट्रोक पे जाएंगे। आउट स्ट्रोक का लीनियर जो लेंथ है ऑन एक्स एक्सिस उसको इवन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट ना। इट मे बी 4, इट मे बी 6, इट मे बी 8, 10 आपके हिसाब से, राइट। जो भी लेंथ होगी उस लेंथ को हम इक्वल नंबर ऑफ इवन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। नाउ अगर हमारा 60 डिग्री थीटा 0 है तो 60 डिग्री को जब मैं एंगुलरली कैम को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो वो तो ऑब्वियसली 10-10 डिग्री का होगा, 6 इक्वल पार्ट्स में अगर करूं तो, राइट। और हमने इस थीटा 0 को, ये जो लेंथ ड्रॉ की है ये तो 3 सेंटीमीटर है, अगर 3 सेंटीमीटर को मैं 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि ईच इक्वल पार्ट्स विल बी 0.5 सेंटीमीटर, राइट ना। तो मैं 0.5 क्या करूंगा, मैं थीटा 0 को इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, थीटा 0 को 6 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में, राइट। 6 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट पार्ट विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5, फिर से 0.5, फिर से 0.5, फिर से 0.5, फिर से 0.5, राइट। सो क्या मैं कह सकता हूं कि दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स पार्ट, राइट ना। कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, 1 2 3 4 5 6। हर एक पॉइंट जो हमने मार्क किया है वहां से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, राइट। हर एक जो पॉइंट ड्रॉ किया है, मार्क किया है, वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, राइट। नाउ जो हमारा स्ट्रोक है, स्ट्रोक को भी हम सेम नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट। अगर ये 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो स्ट्रोक भी 6 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे, राइट। मतलब कि अगर हमें दिया है कि स्ट्रोक जो है दैट इज इक्वल टू से 60 mm, राइट ना। अगर हमें ऐसा दिया है कि जो स्ट्रोक है दैट इज इक्वल टू 60 mm, तो 60 mm को हम 6 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि हमने थीटा 0 दैट इज आउट स्ट्रोक को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया तो स्ट्रोक को भी 6 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे। नाउ स्ट्रोक को 6 पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे मतलब कि इस 60 mm को 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो, और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट 1 सेंटीमीटर का होगा, राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इनिशियल पोजीशन से 0 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर, अगेन अगला 1 सेंटीमीटर, फिर अगला 1 सेंटीमीटर, फिर अगला 1 सेंटीमीटर,
फिर अगला 1 सेंटीमीटर और ये फिर अगला सेंटीमीटर, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इन्हें हम अगेन नाम दे देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। नाउ 1 पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, 3 पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, 4 पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन, 5th पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन और 6 पॉइंट से तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ ही है, राइट ना। सो कुछ यहाँ तक आने के बाद हमें दिखेगा कि हॉरिजॉन्टल हमारे एक्स एक्सिस पे का दैट इज ऑर्डिनेट एब्सिसा पे का 1 और ऑर्डिनेट पे का 1 इज इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, 2 and 2 line is intersecting at this point, 3 and 3 are intersecting at this point, 4 and 4 यहाँ, 5 and 5 यहाँ, 6 and 6 यहाँ, right now ये जो intersecting points हैं, these intersecting points will give me the displacement curve, राइट मतलब कि जैसे जैसे एंगल आगे आगे बढ़ा है फॉलोअर इतना इतना ऊपर गया है। और यहां ध्यान दो, अगर हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहा है मतलब कि हमारा जो कर्व है वो तो लीनियर ही होना चाहिए, राइट ना। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम शुड बी कांस्टेंट, राइट। सो दैट इज योर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का आउटस्ट्रोक का कर्व यहां हमारा कंप्लीट हुआ, राइट। अगला पोर्शन, अब 12 में हमारा जो फॉलोअर है यार ना, यहाँ कैसा हुआ हमारा, जैसे जैसे कैम आगे बढ़ा, कैम का डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे हुआ यहाँ पर वो वैसे वैसे फॉलोअर हमारा आगे गया। जैसे ही कैम 60 डिग्री कंप्लीट करता है फॉलोअर ऊपर पहुंच चुका है, राइट। अगला जो पोर्शन है दैट इज 12, मतलब कि हमारा जो फॉलोअर है वो अगले 30 डिग्री 12 पोजिशन में वहीं रहेगा, मतलब कि जो कर्व है वो हमारा ऐसे ही रहेगा, राइट। नाउ अब तो फॉलोअर का अगला जो 80 डिग्री है दैट इज रिटर्न स्ट्रोक, मतलब कि ये जो थीटा आर है उसमें हमारा फॉलोअर नीचे की तरफ आएगा, राइट। अब अगर हमने आउटस्ट्रोक 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो हम रिटर्न स्ट्रोक को भी 6 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मतलब कि अब बात कैसे समझ में आ रही है कि थीटा 0, थीटा आर और जो स्ट्रोक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेथड में सेम नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ये इक्वल पार्ट्स इवन नंबर ऑफ पार्ट्स रहेंगे, राइट। थीटा 0, थीटा आर और जो टोटल लिफ्ट है स्ट्रोक दैट शुड बी इक्वल, राइट। नाउ थीटा आर भी 6 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो अगर थीटा आर इक्वल्स टू 80 डिग्री है तो हमें मालूम है दिस 80 डिग्री इज नथिंग बट 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को अगर हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमें कुछ 8 5 6 8 4 पॉइंट समथिंग मिलेगा, राइट। तो हम अगर इसे इक्वल पार्ट्स में, राइट ना, 40 को हम डिवाइड कर देंगे बाय से पार्ट्स 6, राइट। सो 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 पॉइंट और अगेन 40 6.67 mm, राइट। तो 6.67 mm 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना, 6 पार्ट्स हो रहे हैं हमारा 1 2 3 4 5 6। अब हम नाम कैसा देना चालू करेंगे, 6 तो यहां दे देंगे 6 डैश ये पॉइंट, राइट। 5 तो यहां दे देंगे 5 डैश, 4 डैश, 3 डैश, 2 डैश, 1 डैश और ये हमारा 0 तो वैसे ही आ जाएगा, राइट। नाउ हर एक पॉइंट से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, 5 डैश से, 4 डैश से, 3 डैश, 2 डैश, 1 डैश, राइट। नाउ 6 एंड 6 डैश यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 5 एंड 5 डैश यहां, 4 एंड 4 डैश की लाइन यहां, 3 एंड 3 डैश की लाइन यहां, 2 डैश एंड 2, 1 डैश एंड 1, 0 एंड 0 डैश आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। तो जो ये हमें पॉइंट्स मिले हैं इन पॉइंट्स को हम जोड़ लेंगे, हमें मिल जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम।
ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक। और अगला जो ड्वेल है वो 190 डिग्री है। रिमेंबर ये जो लेंथ है ये बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन सिंस स्पेस कंस्ट्रेंट्स आर हियर ऑन द बोर्ड, सो मेरा एज्यूम कर लीजिए कि ये जो ड्वेल है दैट इज़ 190 डिग्री। 190 डिग्री मतलब कि लगभग 9.5 सेंटीमीटर, राइट। सो आगे का जो पोर्शन है दैट विल बी योर ड्वेल, राइट। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है ये और ये, दिस इज द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट डायग्राम फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेथड, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन्हें कुछ हम नाम ले लेंगे। ये जो जीरो है इसे नाम दे देंगे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, स्मॉल e एंड स्मॉल f, राइट। और इन्हें हम नाम दे देंगे f डैश, e डैश, d डैश, c डैश, b डैश, a डैश, ऑफ कोर्स ये जीरो डैश तो यही रहेगा, राइट। सो हियर वी कंप्लीट विथ द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेथड, राइट। अब यहां ध्यान दो, ये जो आउटस्ट्रोक का कर्व है और रिटर्न स्ट्रोक का कर्व है ये कंप्लीटली लीनियर ही दिख रहे हैं, राइट। इसका मतलब कि जो हमारा फॉलोअर मूव हुआ है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव हुआ है, राइट। नाउ आइए देखते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम अगर आपको ड्रॉ किया करना आ गया तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का यूज करके हम जो हमारा कैम प्रोफाइल है उसे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। लेकिन फिलहाल के लिए मैं कैम प्रोफाइल का कोई न्यूमेरिकल नहीं ले रहा हूं या फिर आगे नहीं बढ़ रहा हूं। हम देख लेते हैं कि इनका अगर हमने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लिया है तो क्या हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं। से दिस इज योर कर्व, ऐसा कुछ, यहाँ हमारा आउटस्ट्रोक कंप्लीट हुआ, यहाँ ड्वेल, आगे यहाँ रिटर्न स्ट्रोक कंप्लीट हुआ और ये हमारा आगे का पोर्शन, राइट। नाउ अब अगर मैं वेलोसिटी को प्लॉट करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो वेलोसिटी डायग्राम होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी पुट करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो हमारा वेलोसिटी डायग्राम होगा, राइट। सो से एंगुलर पोजीशन और इस वर्टिकल पोजीशन पे या फिर हमारे ऑर्डिनेट पे प्लॉट करेंगे हम वेलोसिटी, राइट। नाउ अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रह रही है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी कांस्टेंट रही है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि फॉर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O to 6, मतलब कि इतने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कैम, जब फॉलोअर यहां तक F तक पहुंच रहा है, इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि हमारा थीटा 0 था, जो हमने एग्जांपल में 60 डिग्री की लिया था, उस 60 डिग्री तक जो हमारा वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। और इंस्टेंटली एट 0 डिग्री वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होगी और जब हम यहां पहुंच जाएंगे, ऊपर पहुंचने के बाद वेलोसिटी इंस्टेंटली डिक्रीज हो जाएगी, राइट ना। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ये जो हमारा कर्व है दैट शुड एक्चुअली कम समवॉट लाइक दिस, राइट ना। थ्योरेटिकल नहीं, एक्चुअल प्रैक्टिस में ड्यू टू सम इनर्शिया इफेक्ट, लेकिन थ्योरेटिकली ये हमारा कुछ वेलोसिटी डायग्राम होगा। अगर हम वेलोसिटी पुट करें ऑन y एक्सिस एंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑन x एक्सिस, राइट। अब ड्यूरिंग ड्वेल पोजीशन वेलोसिटी तो 0 रहेगी। नाउ अगेन जब नीचे आएगा तब फॉलोअर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आएगा, लेकिन सिंस वो नीचे आ रहा है, राइट ना, सिंस द वेलोसिटी, सिंस द फॉलोअर इज मूविंग डाउनवर्ड्स, हम उसे हमारे डेटम लाइन के नीचे ड्रॉ करेंगे ओनली टू शो दैट वेलोसिटी इज द फॉलोअर इज मूविंग डाउनवर्ड्स। नहीं तो वेलोसिटी तो कभी नेगेटिव होती नहीं, है ना। इट डजंट मीन कि अगर मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूं तो वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, राइट। सो कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन द फॉलोअर इज मूविंग डाउनवर्ड्स ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक, हमारा जो रिटर्न स्ट्रोक है उसमें फॉलोअर नीचे आएगा तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, राइट। अगर नीचे आना चालू हुआ तो वेलोसिटी इंस्टेंटली इंक्रीज होगी और इस पॉइंट पे जब वो नीचे आ जाएगा तब वेलोसिटी इंस्टेंटली 0 हो जाएगी, राइट। सो दिस इज योर वेलोसिटी डायग्राम। किसका वेलोसिटी डायग्राम? वेलोसिटी डायग्राम ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी
मोशन ऑफ द फॉलोअर, राइट। अब अगर हम सोचें एक्सीलरेशन के बारे में और हम एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के ऊपर एक्सीलरेशन प्लॉट करें, तो यहां ध्यान दीजिए, ड्यूरिंग आउटस्ट्रोक अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो जीरो है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब कि यहां से यहां तक एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, राइट। इस पॉइंट से आउटस्ट्रोक में पूरा का पूरा एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। उसके बाद जब वो ड्वेल पोजीशन में रहेगा, ड्वेल पोजीशन में भी इंस्टेंटली हमारा एक ही जगह पे रहेगा, तो वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रही है, तो एक्सेलरेशन अगेन जीरो होगा। और उसके बाद फिर जब वो रिटर्न होगा तो वो भी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आ रहा है, मतलब कि वो भी जीरो रहेगा ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक, और आगे का ड्वेल भी जीरो होगा। लेकिन वेलोसिटी कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम हो रही है ना, मतलब कि इस पोजीशन पे जैसे ही हमारा कैम घूमना चालू हो रहा है, इनिशियली वेलोसिटी इज चेंजिंग वेरी अब्रप्टली, है ना, बहुत ज़्यादा हो जा रही है वेलोसिटी। और वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली इंक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज वेरी मच, तो क्या मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इज इनफाइनाइट एट इनिशियल पोजीशन। और जब ऊपर जा रहा है तब इंस्टेंटली जाके रुक जा रहा है, मतलब कि वेलोसिटी बहुत कम हो जा रही है, राइट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इन्फिनिटी। अगेन हम ये भी कह सकते हैं कि जब वो नीचे मूव करना चालू हो रहा है तब भी उसके अंदर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, और जब वो नीचे पहुंच जा रहा है तब भी उसके अंदर वेलोसिटी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, राइट। सो एट दीज पॉइंट्स दैट इज कंप्लीशन ऑफ the return stroke and starting of return stroke and initial and final positions of outstroke, हमारा जो velocity और acceleration diagram वो कुछ ऐसा रहेगा। तो इस डायग्राम को हम नाम दे देंगे acceleration diagram, right। so this is your velocity diagram, angular displacement diagram, इसे हम नाम दे देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। सो यहां तक आपको समझ जाना चाहिए कि हमने जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, मेन थिंग इज डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो मेथड है दैट मेथड इज वेरी यूजफुल। बाकी ये जो वेलोसिटी डायग्राम और एक्सेलरेशन डायग्राम है तो इतना समझ लो कि आता कैसा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेथड ऑफ द फॉलोअर में वेलोसिटी डायग्राम और एक्सेलरेशन डायग्राम होता कैसा है, राइट। नाउ इन डायग्राम्स की जरूरत हम कैम प्रोफाइल जब ड्रॉ करेंगे तब नहीं पड़ेगी, लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये कभी कभी पूछते हैं, राइट। सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम अगर आपको आ गया तो इट इज said that 50% of the cam profile is complete, right? Okay.